So in a strategic analysis, external environment, one is external environment and one is internal environment. So we were in external environment, and strategic analysis in business. Doing business is one thing, but analysis is most important. And in this connection, we did last class analysis, interpretation, conclusion, product and industry, market and customer, competitive strategy. Also we did, there are different kinds of business activities ranging from small local business to international multinational corporations. Business cannot operate in vacuum. Means, what is vacuum? When a business going on, why going on, what's happening, nothing, we don't know anything. This is not business. Business, you have to do it seriously. Okay? Depending on God, this is not business. This is not business. You have to try your level best for success of the business. They continuously act and react to what happens outside their periphery. Drawing an analogy with the term atmosphere, one could envisage layers of such influences. This meaning is, in business, you are in the market, what surrounding you, what going on, so those having effect on your business, you are aware of everything. Okay, then only you can take some proper decision. So same continue, strategic analysis. Write down. Now, क्या हुआ बोलो? स्ट्रैटेजिक. चलो, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. ठीक है. Write down. Environmental scanning is a natural and continuously activity for every business. Every environmental scanning. Now, you are doing business with outside. Outside is your environment. What's going on in environment? Regular scanning should go. What happening around you? Okay, and this is for every business, whatever business, any business you do, business doing sincere, seriously. Okay, so scanning again write down. बोल. इसका नोट्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. ठीक है. नाउ learn about tax regulations. Learn about tax regulations. Okay. So consult experts. Consult managing risk.
and uncertainties. So what happens? By doing this all, what you do, whatever expected risks you want to mitigate, managing risks and uncertainties. इसको कैसे समझना है? सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, आपको मालूम है आजकल जीएसटी, इनकम टैक्स, ठीक है, देन अदर लीगल फॉर्मेलिटीज, you should be aware or not? Aware. If you are not aware, what will happen? Things go wrong. सब केस खराब हो जाएगा. समझ गए? तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ठीक है ना? So risks and uncertainties. Now, the majority of the rapidly expanding organizations use strategic planning throughout various stages of their operations. Okay. Now, write down important considerations are industry and competitive conditions, and 2, own capabilities, resources, internal strengths, weaknesses, and market position. Market position. So in business आपको क्या करना होगा? स्कैन करना होगा. स्कैन करने के बाद आपको एनालाइज करना होगा. एनालाइज के बाद देखना होगा कि मार्केट में अपना पोजीशन क्या है. सपोज यू आर डूइंग व्हाट कंपटीशन इज, what competition is there, you are in which industry and who are the persons with whom you have competition, and then you have to see your own position, your own capability, okay, your own resources, your own strength, your own weaknesses, your position in the market. जैसे आपको बिजनेस करना है, आपको देखना होगा अपोनेंट साइड में कौन है, आप इस साइड में, कैन यू compete with them, do you have resources as required, strength, strength का मतलब क्या होता है, means can you fight with the situations, ये आपका strength है. For example, nowadays technology is a strength. ठीक है? How fighting? With technology.
Best example, Amazon, Flipkart, they are fighting with technology. Success of Ola, Uber, these all Swiggy, based on technology. So what is their strength? We say technology is the strength. So they're even inspiring new companies to come in market. Means what is their strength? Technology. टेक्नोलॉजी. इसमें ध्यान रखना है पब्लिक फेथ ऑन यू. जैसे आप बोले पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाजार में जाएंगे पैसा ले लेंगे. सपोज कितना चाहिए, बोले 200 करोड़ पब्लिक से ले. आप गए मार्केट में 200 रुपया नहीं दिया, आपको 200 करोड़ का बात कर रहे हो, पब्लिक फेथ नहीं है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस, एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन सक्सेसफुल, एटलीस्ट expectation successful. Your market is volatile. Volatile means आज सिचुएशन चेंज हुआ, मार्केट एडजस्ट हो जाएगा. मार्केट जैसे कोरोना आया, मार्केट फॉल कर गया. कोरोना आया, मार्केट क्यों फॉल कर गया? सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट हो गया. ठीक है. मार्केट, वर्ल्ड में वर्ल्ड वार हो रहा है, यहां पर इंडिया का पोजीशन ठीक है. व्हाई? यू आर नॉट अफेक्टेड बाय सच थिंग्स. व्हाई नॉट अफेक्टेड? सो इट इज मैनेज्ड. इट इज मैनेज्ड. Political conditions are such, more or less it is managed. So you are not affected by the countries having war between them. Your country is in safe side. यही सब है ना? Got it? So what happens? Situation. Factors affecting, there is not 1, 2 or 4. All the factors are there which is affecting. समझ गए? हर फैक्टर. ठीक है ना? अगेन write down. Accurate diagnose. Accurate is necessary. Long-term decisions, long-term necessary. Accurate diagnosis is necessary. Long-term decisions. Now, in business, decisions are long term. Decision taken at lowest time. Quick decision. Decision long term है, लेकिन डिसीजन लेना होगा तो वो अर्लीस्ट लेना होगा. कुछ पीरियड नहीं होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी होता है, लेकिन ये पॉसिबल कब है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोप्राइटरशिप, आपका दुकान है, माल लेंगे नहीं लेंगे, बेचना है नहीं बेचना है, दाम बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, मार्केट करना है नहीं करना, आप अकेला हो, क्विक डिसीजन. बट बिग ऑर्गेनाइजेशंस टेक टाइम. बट टेक टाइम का मतलब जरूरत से ज्यादा ले लिया फिर बेकार हो जाएगा. सो इमीडिएट एज अ लिस्ट. देन अगेन सम लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर, सो यू हैव टू कंप्लाई. आंसर इज नॉट टू वेस्ट टाइम. Decision taken
decision taken not necessarily right, but your target should be correct analysis or no, correct diagnosis of the situation or no. Your decision while taking decision should be right or no. Later on declared wrong, वो अलग चीज है. The timing. लेकिन आपका स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए ना. सो डिसीजन टेकन एट लोएस्ट टाइम. ठीक है, फिर लिखिए द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस is a continuous process. Okay. The strategic analysis is a continuous प्रोसेस. ये चलता रहेगा, ये एंड नहीं है. ऐसा नहीं है कि एक डिसीजन ले लिए बोले हो गया डिसीजन तो हो, ऐसा नहीं है. आपको रेगुलर डिसीजन लेना. whenever required you have to take decision. maybe number of times regular डेली डिसीजन आपको लेना होगा. ठीक है, डेली नया नया सिचुएशन आएगा, नया नया डिसीजन लेना. फिर से ये कोई फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है. आपको डिसीजन लेना है. ठीक है, और विदाउट वेस्टिंग टाइम यू हैव टू टेक डिसीजन. टारगेट शुड बी राइट, एक्यूरेट एनालिसिस, एक्यूरेट डिसीजन, सब टारगेट होना चाहिए. अचीवमेंट क्या होगा वो बात का चीज है. सो योर ऑब्जेक्ट जैसे विजन शुड बी क्लियर और नो, क्लियर होना चाहिए ना. उसी तरह से डिसीजन भी क्लियर होना चाहिए. लास्ट में सही है गलत है अलग चीज है. जैसे पता चला कुछ गलत हुआ उसको फिर ठीक करो. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, राइट डाउन बिलो इश्यूज टू कंसिडर for strategic analysis. Strategy evolves over a period of time. Okay, balance of external and internal factors. ओके, बैलेंस क्या करना है? रिड्यूस conflicts, reduce conflicts. Okay, and last is risk. Minimization. Risk minimization. Okay, now risk of various degrees.
risk of various degrees. ओके, रिस्क क्या है? अगेंस्ट योर बिजनेस, अगेंस्ट योर बिजनेस. ओके, रिस्क सिस्टमैटिक है, अनसिस्टमैटिक है. सिस्टमैटिक, known, calculated. This is unknown. External risk, high. External risk, high. ठीक है. आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर का जितना आपका स्टाफ लोग है, स्टॉक है, माल है, ये इंटरनल है. रिस्क का एम्प्लॉय चोरी करके भाग गया, आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन लूपहोल्स दे दिया, ये सब क्या है? रिस्क. एक्सटर्नल तो आपके कंट्रोल के बाहर का चीज है. हाई रिस्क कहाँ है? ज्यादा हाई रिस्क. इंटरनल भी है रिस्क. even you are risk for you only. सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गया. ठीक है. दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. इंटरनल एक्सटर्नल मीनिंग समझ में आया? तो रिस्क एक्सटर्नल भी है, रिस्क इंटरनल. वी हैव सम एडवांटेजेस, वी हैव सम डिसएडवांटेजेस. ठीक है. नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है? एनालिसिस. आप मार्केट का एनालिसिस कर रहे हो, मार्केट भी आपका एनालिसिस कर रहा है. पॉसिबल? चलो आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जिससे समझ में आएगा. राइवल फर्म्स होता है, वो आपका एनालाइज करता है कि नहीं? आज आप एक बड़ा दुकान खोल लो, स्मार्ट बाजार इस टाइप का. आपको क्या लगता है और जो मार्केट में लोग हैं पर ध्यान रखेगा कि नहीं? आप डिस्काउंट रेट बढ़ा दिए, कम कर दिए, बेसी कर दिए, गिफ्ट देने लगे, स्कीम बना दिए, वो लोग का सेल्स अफेक्टेड होने लगा. क्या लगता है वो आपका एनालाइज करेगा या नहीं? कुछ ठीक हुआ? और एकदम लोअर लेवल में चले जाओ, जिस पाड़ा में आपका बिजनेस है, चंदा पार्टी लोग आता है, आपका एनालाइज करके आता है इससे कितना चंदा वसूलना है. यस और नो? क्वेश्चन अच्छे कि यस और नो. समझ रहे हो? आपको लगेगा कि आपको कैसे पता चला? ये मार्केट है. हाँ? अभी मालूम है सब. ये नोन अननोन क्या सब नोन है. अभी एक तो आया है, केस आया है. कुछ लोग होता है कितना का चंदा काट दिया, 1 लाख का, कोई आया 1.5 लाख का चंदा काट रहा है, तो लास्ट में बोला बिल मत काटो, मेरा गला काट लो, सीधा झमेला खत्म करो. समझे? बोला बिल मत काटो, सीधा हमको काट दो. हाँ, बोला क्या है?
टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा सर। तो नहीं, क्वेश्चन है ये क्या है, वो कहाँ जाएगा? पार्टी में मैंने समझ गए। जो चंदा मांगने वाला सब पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है। बॉस उन लोग को नाराज कर नहीं सकता है, क्या कि वोट झंडा तो वही लोग लेके जाएगा। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी है, आप पीएस में जाओगे तो पीएस बोलेगा कहाँ फंसा रहे हो आप, हमको सेटल कर लो। समझ गए? अब क्या है कि ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम है ऑन रिकॉर्ड। समझ गए? डायरेक्ट किसी का नाम लेना मुश्किल है, बट और कैसे पकड़ना है? मान के चलो जितना बड़ा पूजा उतना बड़ा पीछे में आदमी लोग है। समझ गए? जितना बड़ा पूजा आप मान के चलो। सब दादा प्रेसिडेंट समझ गए? चलो वापस, एक्सटर्नल रिस्क हाई। समझ गए? नाउ एक्सटर्नल रिस्क आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर टाइम टू टाइम केसेस आता है। आप देखोगे बहुत सा पोजीशन में है, दे गेट अलॉटमेंट ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग सरकार से मिल जाता है, और बाकी लोग है कुछ नहीं मिलता है उसको। हाउ? सही कंपलसरी एक्विजिशन का वर्क करता है कुछ नहीं, सरकार दे दिया आपको। सरकार कैसे दिया कोई जगह है, बोला फुटबॉल खेलना है, ट्रेनिंग देना है, बैडमिंटन सिखाना है, गवर्नमेंट आपको अलॉट कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम नॉमिनल में। ठीक है, अब क्या है, वो एक स्कीम बनाएगा और दे देगा। आप बोले हम बहुत ईमानदार है, बोला ये क्वालिफिकेशन नहीं है, दिस इज नॉट क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन। समझ गए? एनीवे ये सब चलता रहता है। समझ गए? ऑनेस्टी इज नॉट अ क्वालिफिकेशन। चलो वापस। सो एक्सटर्न ये जैसे बिजनेस है ना, आपको मालूम है, आपको सपोज एग्जांपल आपको बोला बिजनेस करना है, बहुत है, एक्सपोर्ट में बहुत प्रॉफिट है, बोला कहाँ एक्सपोर्ट करना है, बोला तालिबान। बोले तालिबान नाम सुने, बोले हमको कुछ करना ही नहीं है। क्या बोले? कुछ नहीं करना है। ये क्या है? ये भी एक डिसीजन है ना। समझ गए? तो ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब कंसिडरेशन नहीं है। इंडिया में बिजनेस करना है, ये तो स्ट्रेटेजिक है। इंडिया में बिजनेस करना है तो पहले तो बिजनेस क्या करना है, फिर स्टेट चूज करना रहता है, फिर टैक्स कॉम्प्लिकेशंस देखना पड़ता है। पीस एंड सिक्योरिटी, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? पीस एंड सिक्योरिटी। व्हाट इज पीस एंड सिक्योरिटी? प्रॉफिट ज्यादा है, पीस कम है, प्रॉफिट कम है, पीस ज्यादा है, प्रेफर विच वन? प्रॉफिट कम, पीस ज्यादा। समझ गए? तो एक बार ये पीस वाला जब क्वेश्चन आता है ना, वहां पे मनी काम नहीं करेगा। सपोज बोला बहुत प्रॉफिट है लेकिन लाइफ रिस्क है, एक ही वर्ड बोला, रिस्क खत्म। समझ गए? ये भी बिजनेस है का पार्ट है। तो व्हाट इज रिस्क? एनीथिंग अगेंस्ट यू इज रिस्क। स्मॉल रिस्क, बिग रिस्क। रिस्क का मीनिंग समझ में आया? नंबर ऑफ टाइम्स बिग डिसीजंस दे आर सेइंग नो। समझ गए?
उस जगह पर ये कोर्ट, पीएस, ये सब काम नहीं करता है। समझ गए? देन बाइज्ड पर्सन्स, बाइज्ड, पर्सन वहां पे आपका लॉजिक वगैरह नहीं चलेगा। रिलीजियस, वहां पर आपका लॉजिक नहीं चलेगा। ठीक है? नहीं, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। एनीवे, एक्सटर्नल रिस्क लिखिए आप। An analysis helps identify opportunities, threats, strengths and weaknesses and weaknesses, threats, strengths and weaknesses. ठीक है? Now, again write down strategic analysis. External, internal. Under external, customer analysis, competitor analysis, market analysis, environmental analysis, internal performance determinants, ओके। डिटर्मिनेंट्स में क्या है? कॉन्स्ट्रेंट्स, ओके। कैपेबिलिटीज, ओके। देन अगेन opportunities and threats, okay. Strength, weakness, then finally what we do? Strategy identification. And selection. Identify strategy, alternatives, select strategy, implement the operating plan,
review strategies, ठीक है। फ्यूचर profit prospects, future profit prospects. So what you are doing? Analysis, external, internal. External में क्या है? Debtor, external market, external competition, external environment, external, we have internal also. Our own performance, internal, what we planned, what we thought, what happened, compare. Determinants, our strength and weaknesses, constraints, ठीक है। सबको एनालिसिस करने के बाद वी हैव अ स्ट्रेटेजी, देन वी हैव maybe what we thought that strategy will not work. Then we are saying what are the alternative strategy. So identify strategy alternatively, select strategy. Suppose 4 alternative और है, उसमें से एक select करो, implement करो, प्लान बना के उसको ऑपरेटिंग में डालो, and again review your own strategy. ठीक है, अपने स्ट्रेटेजी को। So this analysis is never ending. Again, okay. Again, सर कौन सा एनालिसिस हम फर्स्ट में करते हैं पहले? कौन सा स्ट्रेटेजी फर्स्ट और सेकंड कुछ नहीं होता है। सिलेक्ट करने के बाद जो स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लगा उसको एक्सेप्ट करो। एनालिसिस कौन सा फर्स्ट करेंगे? सब साइमल्टेनियस चलता है, कोई फर्स्ट सेकंड नहीं होता है। आप जब बिजनेस करने जाते हो तो डिसीजन सब क्या एनालिसिस के बाद होता है या पहले होता है? पहले तो तो सर सब का मतलब क्या करोगे आप? जिसको मन पहले कर सकते हो करो। सर पहले तो सर हमको मार्केट कंडीशन देखना होगा। फिर नहीं समझे, इसमें कोई सीरियल ऑर्डर नहीं है कि ये नंबर 1 करेंगे, उसके बाद नंबर 2 करेंगे, उसके बाद नंबर 3 करेंगे। सर अब क्या है, आप लॉजिकल में थोड़ा सेट कर सकते हो। मार्केट कंडीशन पहले तो आपको बिजनेस देखना होगा। सपोज आप डिसीजन लिए कि हमको इलेक्ट्रिकल लाइन में जाना है, तो ग्रोसरी शॉप वाला कस्टमर से कोई बात करके फायदा है? नहीं है। लेकिन आप बोले नहीं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में हमको जाना है, ऑन ग्रोसरी ग्रोसरी भी आ गया। तो आपको तो डिसीजन लेना है ना, फिर किसको देना है, सामान कैश बेचना है कि क्रेडिट में बेचना है। एक्सटर्नल है। फिर हम क्या बोलते, एक्सटर्नल है ना, हाँ तो डेटर आ गया, मार्केट है, सब एक साथ आता है। डेटर कहाँ से आ रहा है? मार्केट से ही तो आ रहा है। सर वही तो बोले सर, पहले तो सर हमको मतलब पहले डिसीजन लेना होगा कौन सा बिजनेस, कौन सा इंडस्ट्री, उसका कंपटीटर कौन है। पहले तो आप डिसीजन लो ना, करना क्या है। आप बोले हमको दूध बेचने का मन कर रहा है, तो होटल वाला को पकड़ो, जो लोग बेचता है उसको पकड़ो। समझ में आया? एक होता है करना क्या, इसका भी मार्केट रिसर्च होता है, इसका भी मार्केट रिसर्च होता है। जैसे आप कंसल्टेंट के पास पहुंचे तो वो बोलेगा, पूछे क्या बिजनेस करना है, उसी को पूछ रहे हैं कंसल्टेंट, हम बिजनेस करना चाहते हैं, आप बताओ क्या करें। तो ये थोड़ा क्वेश्चन टफ क्वेश्चन हो जाता है। चलो आपके पास आया, बोला हमको बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करें? फिर हम क्या, तो आंसर मिला जैसा कैपिटल वैसा बिजनेस कर लो, कुछ आंसर मिला तब तो बोलेगा एक ऐसा कंसल्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या है, इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, सीरीज ऑफ क्वेश्चन आंसर। समझ गए? फिर क्या होता है, आप जो डिस्कस कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो लिटरेट है कि इलिटरेट है?
आप उसको ऐसा वर्ड सब समझा दिया, लास्ट में बोला क्या बोला, Implementation of operating plans. Your technical team manage. हाँ? आप उसको बोले इम्प्लीमेंटेशन तो बोला आप करो, ऐसा होता है? हाँ? Okay. कंसल्टेंट को दुकान खोल के बैठा दिए। कंसल्टेंट का काम है ऑफिस में बैठेगा, खाली बोलेगा करेगा, वो कहीं नहीं जाता है। तो लास्ट में है मुझे तो ज्यादा समझ गए? तो ये सब क्या है, ये पूरा है बिजनेस का। व्हेन यू डू बिजनेस, इवन दोज हु आर बिग बिग बिजनेसमैन, maybe they don't know this strategic management, but they are doing. Even small business, they are running successfully. How? Everything they are doing, but they don't know that this is the thing. टर्म से वो मैंने अवेयर नहीं, बट ही इज डूइंग एवरीथिंग। आप छोटा बिजनेसमैन सबसे बात करो और आप उसको स्टडी में देखो, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल। वो स्टडी करना समझे? आप कोई शॉप है, उसको बोला आप ये सामान क्यों नहीं रखता है, बिक्री को बोला सामान तो रखता है लेकिन बिकता नहीं, सब बगल में घुस जाता है। बिक्री को बोला क्यों घुस जाता है, बोला अब ये तो हमको आज तक नहीं पता चला। सामान सेम नहीं होता, सप्लायर सेम, गॉट इट? वो मार्केट स्टडी होती है उसकी काम फिर क्या है, ये सब क्वेश्चन आंसर है। ठीक है? बोला बगल में तो स्टाफ लोग सामान बेचता है, यहाँ तो हम मालिक होकर सामान बेचता है, लेकिन मेरा नहीं बिकता है, वो स्टाफ लोग बेच देता है। तो अब आपको समझना होगा ना बात क्या है। नंबर ऑफ टाइम्स इन बिजनेस, पास्ट हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, आपका हिस्ट्री खराब है, सपोज क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बोला हम एकदम सुधर गया, बोर्ड लगा दिया, पब्लिक मानेगा? नहीं मानेगा। बोलता है नहीं, उससे हमको कनेक्शन ही नहीं रखना। समझ गए? तो ये सब क्या होता है, मैंने आपको, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्सटर्नल नॉलेज है, बिजनेस में ये सब भी जरूरी है। वंस योर नाम खराब हो गया, और एक बार आपका नाम अच्छा हो गया, जैसे टाटा का नाम अच्छा है, वो जो भी बिजनेस करता है सक्सेस। इवन आज वो डिक्लेयर करेगा दिस न्यू बिजनेस शेयर इशू 200 करोड़ चाहिए, पब्लिक 2000 करोड़ देती है। समझ गए? तो ये भी एक बिजनेस है। समझ गए? सो फॉर देम, चल वापस, तो फ्यूचर प्रॉफिट, प्रोस्पेक्ट्स, अल्टीमेट क्या होता है बिजनेस में? प्रॉफिट, अल्टीमेट प्रॉफिट। ठीक है? चलो अगेन, प्रॉफिट भी एक क्या होता है? प्रॉफिट, रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट, रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट। ठीक है? रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट क्या होता है? जैसे आपको बोला कि मेरा नेट प्रॉफिट 20% है, तो ठीक है, रिस्पेक्टेबल है। कोई बोला मेरा नेट प्रॉफिट 0.5% है, इसको रिस्पेक्टेबल बोलेंगे? नहीं। तो व्हाट इज रिस्पेक्टेबल? आप बिजनेस कर रहे हो, एक रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, तो दैट इज रिस्पेक्टेबल। फिर से आप लाइन में हो, बिजनेस में हो, तो आपका प्रॉफिट एक होना चाहिए ना, 10, 15, 20% प्रॉफिट हो रहा है,
तो उसको बोलते हैं रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट। समझ गए? सो रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट। यहां पर फिर दो टर्म आएगा, एक होता है परसेंटेज अच्छा है, एक होता है कि अमाउंट अच्छा है। दिस विल डिपेंड ऑन इंडस्ट्री। सपोज आप बैंकिंग में हो, बैंकिंग में हो तो परसेंट निकालोगे कैसे, किस पर निकाले? बोला डिपॉजिट 7.5% है, लोन 8% है, 20% कहां से आएगा प्रॉफिट? तो वहां पर क्या होता है, वॉल्यूम है। वी हैव एक जीपीएनपी सेल्स पर निकालते हैं ना हम लोग, जीपीएनपी सेल्स पर निकालते हैं। तो बोला हम लोग का सेल्स पर निकालने से तो कुछ नहीं निकलेगा। गॉट माय पॉइंट? तो होता है ना किस लाइन में, इंडस्ट्री वाइज। प्रोडक्ट सेलिंग इज डिफरेंट थिंग एंड आवर इज सर्विस सेलिंग। बैंकिंग में क्या है, तो वहां पर मीनिंग अलग है, इंडस्ट्री अलग है, तो आप उसको अदर से कंपेयर करके नहीं चलेगा ना। ठीक है, चल। तो इंडस्ट्री, अगेन राइट डाउन strategy and business environment. Strategy and business environment. So, strategy क्या है? Goals and objectives, formulate policies, okay, factor considered, internal and external, the business environment is highly dynamic and continuous evolving. Continuous evolving. Okay. So, highly dynamic, इसका मतलब चेंज होता रहता है। आज से 50 साल बिजनेस करने का जो तरीका था, 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 1 साल, सब चेंज हो रहा है। इट इज हाईली डायनामिक। जैसे अभी आज के डेट में डूइंग बिग बिजनेस विदाउट टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल। वर्ड क्या आ जा रहा है? इम्पॉसिबल। ओके, कंट्रोल बिकम्स इम्पॉसिबल। By use of technology in a proper way, reducing cost. सर कॉस्ट तो बढ़ रहा है सर, सिर्फ एम्प्लॉय को सर सैलरी देना होता है, पूरे एम्प्लॉय बात ये फिर से आप देखोगे आजकल बहुत सा मॉल है, कस्टमर को बोलता है अपना सामान अपने से ले लो,
बोलता है हम लोग सिर्फ बिल बनाएगा, आपको जो लेना है ट्रॉली लो, अपने से जाओ, घूमो, सामान लो, लेके आओ, ठीक है। और आप क्या किए, 25 30 40 50 आइटम चूज किए, पॉसिबल, लेके आए, बिल बनाए, दे दिए। एंड हाउ दे आर कंट्रोलिंग, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, CCTV कैमरा, स्टॉक कंट्रोल टेक्नोलॉजी। पर्सन को कंट्रोल, कुछ गड़बड़ नहीं करे, सीसीटीवी कैमरा, राइट। one time intention. समझ गए, जो सामान वो दे रहा है, ऐसा सोचो उसमें उसको 100 एम्प्लॉय लगता है, वहां पर वो 20 एम्प्लॉय से काम कर रहा है। राशि तो नहीं पहले 10,000 टाइगर में 8 लाख रुपए सेव करते हैं। समझ गए। सो ये सब क्या है, सब टेक्नोलॉजी। विदाउट टेक्नोलॉजी नाउ डूइंग बिजनेस इम्पॉसिबल, टफ, अभी मुश्किल है। सिर्फ हम छोटे छोटे दुकान पर स्कैनर नहीं चल रहे, बार स्कैनर नहीं चल रहे, ठीक है। स्कैन करते ठीक है। तो टेक्नोलॉजी, आजकल पेन का रोल खत्म कर दे रहा है, ये भी ले जाते ठीक है ना। मैंने सामान का अमाउंट पढ़ना फास्ट, टोटल फास्ट, एवरीथिंग फास्ट, हैं। टेक्नोलॉजी। ये क्या है, तो विदाउट टेक्नोलॉजी नाउ यू कैन डू बिग बिजनेस। छोटा सा दुकान आप चला सकते हो, जो लोकल ग्रोसरी शॉप, स्टेशनरी शॉप, लोकल। If it is big, again they need technology. Otherwise, demerits will be more, merits will be less. समझ गए? Stock control, all big businesses. Best example, shopping malls. They are using technology or no? All delivery system, technology. So even nowadays, restaurants will scan code for bill, select for टेक्नोलॉजी, better, better. समझ गए। आजकल क्या है, सब लॉन्ग रन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी। सो डूइंग बिजनेस यू शुड अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। जितना टेक्नोलॉजी ग्रोथ करेगा डेवलप होगा सर, उसका तो सर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ना सर। फिर से अब क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड जहां पर ओवर पॉपुलेशन है वहां के लिए है। सर इंडिया में तो सर होल वर्ल्ड व्हेन वी कंसीडर, इंडिया चाइना को खाली आउट कर दो, पाकिस्तान को भी हटा दो, तो मोरलेस सभी जगह पॉपुलेशन शॉर्ट है। समझ गए। बट दे नो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन बाय सीइंग दिस इंडिया एंड चाइना। समझ गए। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सन was known during कोरोना पीरियड। अगर होल वर्ल्ड से आदमी गायब हो जा तो क्या होगा, जीरो। सो सेइंग पर्सन्स, पर्सन नहीं रहेगा तो किसके लिए क्या है, फिर सब जीरो। समझ गए। पर्सन नहीं रहेगा ना, आपका 1 करोड़ का फ्लैट 10 लाख का भी नहीं रहेगा। अब समझ में आया। पर्सन है बोल के सब कुछ है। आई थिंक गॉट इट। चलो वापस। तो बिजनेस इज हाईली डायनामिक एंड नाउ व्हाई होल वर्ल्ड इज कीपिंग आई ऑन इंडिया। चाइना में एंट्री टफ है क्योंकि कंपटीशन मुश्किल है। इंडिया इज सॉफ्ट टारगेट। दे नीड कंज्यूमर। आप सामान बेचोगे किसको, कंज्यूमर होगा तब तो बेचोगे। कंज्यूम प्रोडक्ट
पर्सन होगा तभी तो बिकेगा. Got it? So you can't ignore people. समझ गए? And most precious asset is people. Person सबसे ज्यादा. चलो again. Now, strategic management helps the business in various ways. One, determine opportunities and threats. To give direction for growth. Continuous growth. Continuous learning. Fourth, image building. Image building. Fifth, beating competitions. Okay? So, determine opportunities and threats. ये सब क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ. कंटिन्यूअस लर्निंग बिकॉज कंटिन्यूअस गोइंग ऑन. इमेज बिल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट. इमेज बिल्डिंग में क्या होता है? एक होता है लोकल में, एक होता है नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल. ये क्या चीज? इमेज बिल्डिंग. टाटा ग्रुप का अपना एक इमेज है. यस एकदम. मीनिंग समझ में आया? रिलायंस का अपना एक इमेज है. बाटा का अपना इमेज है. ओके. इमेज बिल्डिंग. इमेज बिल्डिंग में क्या होता है? बहुत सा का प्रोडक्ट का इमेज बिल्डिंग होता है. बहुत सा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. बनाया कौन अलग चीज है. ध्यान से बना. बहुत सा क्या है? जैसे मान लो लक्स 100, उसका एक इमेज बिल्डिंग किया गया. डब 100, उसका अपना एक इमेज बिल्डिंग है. सर्फ एक्सल एक इमेज बिल्डिंग है. सर्फ एक्सल वॉशिंग पाउडर. ठीक है. पियर 100 उसका अपना एक इमेज बिल्डिंग है. टाटा ट्रक्स इमेज बिल्डिंग है. अशोक लेलैंड अपना इमेज बिल्डिंग है. ठीक है. अब ये क्या होता है कि एक नाम है. सर इसको नाम बोलेंगे ना ब्रांड बोलेंगे? हम क्या बोले? ब्रांडिंग. इमेज बिल्डिंग. ब्रांडिंग क्या है? इमेज. ब्रांडिंग का मतलब क्या है? ये होने से ही बिकेगा. अब ध्यान से. ब्रांडिंग मालिक कौन है मालूम ही नहीं है. बहुत सा प्रोडक्ट है. यू नो द प्रोडक्ट, यू डोंट नो हु इज द पर्सन बिहाइंड.
Who is the person behind? Like the cat. A 5-star chocolate. तो 5-star चॉकलेट बनाता कौन है मालूम नहीं है, पढ़ना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर। फिर क्या है मालूम है आजकल, मैन्युफैक्चरिंग इज डिफरेंट थिंग, मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग। समझ गए? मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट, मार्केटिंग। मैन्युफैक्चरर ए है, मार्केटिंग बी। प्रोडक्ट में लिखा है मार्केटेड बाय। Manufactured by different marketed by like sir Apple, Reliance is समझ गए? marketed for Apple. ये सब भी होता है। ये सब आपको बिजनेस समझना होगा। व्हाट इज बिजनेस, हाउ वन कैन डू बिजनेस। ठीक है, अब आपको लगेगा एज ऑडिटर क्या करना है। सो while doing audit you are aware of everything. Audit area is such, okay, that you are aware of everything. Where you face problem, when Chemical. it is not the cup of tea of your cup या cup of your tea जो बोलना है, ठीक है। मेरे नाम से तो ये जब आपका नहीं है तब आपको देना होता है डिस्क्लेमर। ये नहीं बोला जाता है कि आई डोंट नो एनीथिंग, ठीक है ना। तब आपको बोलना पड़ता है रिलाइड ऑन दिस, ठीक है। चलो अगेन राइट डाउन micro and macro environment. तो माइक्रो क्या होता है, स्मॉल सेंस, और मैक्रो एग्रीगेट्स। ओके, aggregates. So environment, okay, so environment we are dividing into two parts. One is micro and one is macro. This is another way of segregation, micro and macro. Okay, now micro, employees, existing customers, finance, raise, suppliers, local community, local, direct competition, others, मैक्रो में डाल दो, others put under, ठीक है।
So macro is outside factors. Outside factors. एग्रीगेट होता है टोटल, इंडिया का प्रोडक्शन, वर्ल्ड का प्रोडक्शन, विलेज प्रोडक्शन, इंडिया प्रोडक्शन। ये माइक्रो मैक्रो में थोड़ा डिस्प्यूट है, व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज मैक्रो। ओके, नाउ डेमोग्राफिक। environment, बोलो। Sir, what kind of question come from this subject? Like case study is like a normal mineral, what is micro? These are the question. ठीक है, एक तो एमसीक्यू है, हाँ वो तो है। थोड़ा सा रहेगा, सर 30 नंबर आता है। 15 नंबर का मान के चलो इसमें से रहेगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव रहेगा, सर उसमें सर क्या है? केस लॉ भी हो सकता है, नो, ठीक है, इसमें लॉ नहीं है, केस लॉ अलग चीज होता है, केस, ठीक है। अगेन सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल environment, traditions, values, beliefs, ठीक है। ये क्या होता है, आप जो इन्वायरमेंट में बिजनेस करते हो, यू आर डूइंग बिजनेस, कस्टमर्स दे बिलोंग फ्रॉम सम सोसाइटी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। चलो एक एग्जांपल देते हैं, ड्रेस मटेरियल। विलेज में जो ड्रेस मटेरियल है, टाउन में अंतर है, स्टेट टू स्टेट चेंज होता है, वेयरिंग स्टाइल, कंट्री टू कंट्री चेंज होता है। ये क्या है, इस सोसाइटी वाला चक्कर है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ और नो। आंसर इज यस, सिंपल आंसर इज यस। सो you have to give their values। तो इसको कैसे समझना है, सपोज एक बंगाली है, बंगाली कल्चर, आप बिजनेस कर रहे हो, तो बंगाली कल्चर को उसका वैल्यू देना होगा, उस हिसाब से आप उसको साउथ इंडियन स्टाइल समझा दिए, चलेगा? वो बिजनेस फेल हो जाएगा। तो जो जैसा है उसको, उसके कल्चर को, उसके वैल्यूज को, उसके ट्रेडिशंस को आप इंपॉर्टेंस देना होगा। एंड बिलीव्स, मतलब डोंट प्रूफ अदर रॉन्ग, जो है। सपोज सेम थिंग, बंगाल का एक कल्चर है, साउथ इंडिया का एक कल्चर है, फिर स्टेट टू स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट का कल्चर है, उड़ीसा स्टेट का अपना एक कल्चर है,
अंतर है थोड़ा बहुत. Persons common, but their values are different. They have their own values. ठीक है. अगेन बोलो. आ रहा है. इकोनॉमिक एनवायरमेंट. इकोनॉमिक when we talk about इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स, इसमें क्या आ जाता है? कॉस्ट. ठीक है. बेनिफिट्स, बेनिफिट्स, इनकम, disposable incomes, okay, inflation, okay. तो आपको प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्या होता है? इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट, इसको ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना होगा एनवायरनमेंट में. लोन रिपेमेंट कैपेसिटी, more you go through legal provisions. Okay, so कोई चीज डिस्पोज करने के लिए भी डिस्पोजेबल इनकम, आपका इनकम है 1 लाख रुपया महीना का, आप ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा करोगे? नहीं, 60, 70, 80 हजार, उससे ज्यादा नहीं. फिर क्या होता है? प्री ऑक्यूपाइड. सपोज आपका महीने का इनकम है 1 लाख रुपया, 50 हजार तो पहले से फिक्स हो जाना है. घर का रेंट, गाड़ी का ईएमआई, बचा कितना खर्चा करने के लिए? समझ गए? दैट इज फॉलिंग अंडर. डिस्पोजेबल आपके पास बचा क्या? क्या आप डिस्पोज कर सकते हो? क्या आपके हाथ में? ठीक है. फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप सेफ्टी सिक्योरिटी लोगे. ठीक है. अगेन पॉलिटिकल, लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है. नाउ आइडियोलॉजी, मोरालिटी, स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी, लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम. सो मीनिंग
ideology. Political systems, what their ideology is. ठीक है? What their morality. Can you believe on the political forecastings? तो ये सब भी फैक्टर्स है. स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट रहेगा नहीं रहेगा जाएगा. गवर्नमेंट पॉलिसी, लीगल सिस्टम, लीगल, this is also one question mark. This is also one question mark. How your legal system works. आपका लीगल सिस्टम कैसे काम करता है. ठीक है. अगेन, सो लीगल सिस्टम, वर्ड फिर आएगा नेशनलिज्म. ओके. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जॉब क्रिएशंस, जॉब, so these are supporting to the business. It is good for the business. Yes, sir. Make it. एक था मेड इन इंडिया और एक है मेक इन इंडिया. मेड इन इंडिया में आप शॉर्ट में सोचो स्टैंप इंडिया का है, लेकिन मेक इन इंडिया में माल यहीं बढ़ेगा. इंडिया बनाने वाला इंडियन है और एक इंडिया में बनेगा. मीनिंग समझ में आ रहा है? यस, बाहर का वाला आके इधर बना. सपोज आप बनाए, लेकिन कहाँ बनाए? बांग्लादेश जाके, मेड इन बांग्लादेश, नेपाल जाके, फैक्ट्री वहां है लेकिन स्टैंप इंडिया का है. और एक है नहीं, इंडिया के अंदर बनेगा. ये हुआ मेक इन इंडिया. मीनिंग समझ में आया? बनाने वाला इंडियन है और एक है नहीं, इंडिया के अंदर बनेगा. तो मेक इन इंडिया इज सपोर्टिंग इंडिया के अंदर. ठीक है. इसके अंदर में आत्मनिर्भर भारत, इससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. आत्मनिर्भर भारत का मतलब इंडिया में ही माल बनेगा, इंडिया में ही कंज्यूम हो जाएगा. इंडिया में बनेगा, इंडिया में कंज्यूम हो जाएगा. ठीक है. सो आत्मनिर्भर भारत मतलब हमको इंपोर्ट नहीं करना होगा, हम लोग अपना प्रोडक्शन. समझ गए? मेक इन इंडिया में क्या है? इंडिया में बनाएंगे, बाहर में ले जाओ. बाहर वाला को बोला इंडिया में आओ, माल बनाओ, बाहर ले जाकर बेच दो. बनाओ इंडिया में. ठीक है. गॉट इट? हाँ. आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये माल हमको बाहर से नहीं लाना है, हम लोग का लोकल अपना प्रोडक्शन. फिर से मेक इन इंडिया में बाहर वाला को बोला इंडिया में आओ, फैक्ट्री बैठाओ, माल बनाओ, इंडिया के बाहर ले जाके बेच दो. बनाओ इंडिया में. बेचना है लोकल बेचोगे तो टैक्स हमको दे देना, बाहर बेचोगे तो टैक्स भी मत देना. जाओ, माल तो यहां बना, आपको टैक्स नहीं देना, जाओ, छोड़ दिया. समझ में आया? एम्प्लॉयमेंट मिला ना. आत्मनिर्भर भारत का मतलब इंडिया को इंपोर्ट का जरूरत नहीं है, इंडिया अपना माल अपने से बना.
कुछ ठीक हुआ? सबका शॉर्ट वर्ड याद रखना है, इससे आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जॉब क्रिएशन, इंडिया में जब काम होगा तो बनाएगा कौन? पीपल। बाहर वाला आया, ऐसा हो सकता है 100 आदमी में 10 उसका बाहर का आदमी है, 90 तो यहाँ का है। ठीक है, अगेन क्लियर? अगेन टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, ओके। टेक्नोलॉजी impact, technology impact, opportunities। ठीक है, क्लियर? तो टेक्नोलॉजी, impact and opportunity. The technological environment already we have discussed. Nowadays if you want to do business and if you are not adopting technology, you will be behind. You have to, nowadays compulsory, you also have to be ahead in technology, adopt technology, adopt changes in technology. So total technology you have to accept. If you don't accept, you will be behind. So regular updation of technology. So nowadays our environment is full running under the shade of technology. Without technology, you can't go ahead. All communications fully based on technology. Okay, all updated, recent, current data, all based on technology. Okay, so next time same will continue. We will discuss पेस्टल। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।